Hey guys, welcome back to a very new video in this series of trees. And in today's lecture, we are going to discuss about AVL trees. So पिछले लेक्चर्स में हमने बात कर ली थी BSTs के बारे में और कैसे BSTs को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उनको ट्रिवर्स करते हैं, ठीक है। इस सीरीज में हम बात करेंगे AVL ट्रीज क्या होते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम BSTs एंड व्हाई डू वी नीड देम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first thing about BST, so the first thing about AVL trees is that it is also a BST, ठीक है। यानी कि AVL ट्री सबसे पहले एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, ठीक। नाउ द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस height of right subtree must be from this set -1, 0 or 1. Okay, and this thing, height of left subtree minus height of right subtree, is known as balance factor. Okay, तो ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमेशा अपने दिमाग में रखना. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. नाउ let's suppose you have some elements. Okay, for now I have three elements: A, B and C. Fine. So let's try to make AVL trees from these elements. Okay, so we already know that there is a relation between these elements. So A is less than B is less than C. Okay, so let's try to insert all these elements and try to make AVL tree. Okay, so first of all, A is the root node. Okay, so simply insert A. Fine. Now we have to check the balance factor. So what is balance factor? Height of left tree minus height of right tree. Okay, height of left subtree minus height of right subtree. So there is no left subtree or right subtree for the element A. So the balance factor is 0. Got it? Now B is greater than A. So B should be in the right position of A. Okay, here. Now what is the balance factor of B? Again 0, because there is no left subtree or right subtree for the element B. So its balance factor is 0. Now we have to again check the balance factor of A. So now the left subtree for the element A is 0. Okay, there is no left subtree. Okay, so 0. But the right subtree, okay, it has one right subtree. So the height of right subtree is what? 1. Okay, it is 1. So 0 minus 1 is equals to -1. So it is from the set. Okay, the set was -1, 0 and 1. Okay, so yeah, it is from this set. Okay, so no problem. Now just remove it. Okay, okay, so now insert the third element. So C is greater than A. Okay, so move right, and C is also greater than B. So again C should be added here. Okay, now the balance factor for C is 0 and balance factor of B is what? Remove it. So left subtree, there is no left subtree, so height of left subtree is 0 and height of right subtree is 1. So 0 minus 1 is what? -1. Okay, so it is balanced. Okay, now again we have to calculate the balance factor for the element A. So height of left subtree is still 0 minus what's the height of right subtree? So 1 and 2. Okay, so 0 minus 2 is what? -2. See, this is not from this set. Okay, so yeah, this tree is a BST but not an AVL tree. Okay, so we have to balance this tree to make it a AVL tree. Okay,
So let's see how do we balance it. So we have this tree A, B, and C. Okay. So B is in right of A and C is in right of B. Okay. So there are two right insertions. So keep this in mind or try to note it. Okay. Whenever you see there are two right rotations, okay, you have to perform a left rotation. Okay. On which the balance factor is this. Okay. So this is the unbalanced node because its balance factor is -2. So you have to perform left rotation on this node. Okay. Here, this. You have to perform left rotation over here. Or you can say that the median element should be the root of this tree. Got it? So when you pull or make a left rotation like this, when you pull down A below, the B will automatically get above. A will be shifted here and C will be at its place. So now check the new balance factor. Obviously for leaf node it's 0, here also 0, and here height of left subtree is what? 1, and right subtree is also 1. So 1 minus 1 is equals to 0. So balance factor of this node is 0. Now it is an AVL tree. Got it? So whenever you see two right elements and there is a balance factor value which is not from the set -1, 0 and 0, you have to perform a left rotation. Okay. और ये आपको कहाँ परफॉर्म करना है? वहां पे जिस भी नोड का बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 नहीं है. ठीक है. आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी. सो ये था हमारा पहला केस. अब आगे और केस भी डिस्कस करते हैं. सो अगेन आई हैव 3 एलिमेंट्स. ठीक है. बट नाउ इनको किसी और ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सो लेट्स सपोज सी एंड बी and A. Okay. So it is a BST obviously because C is less than B is less than C and A is less than B. Okay. So here the insertion is performed at two left values. ठीक है. दो left insertions हैं आपके पास. So balance factor for A is 0. Okay. Balance factor for B is 1 minus no subtree. So 1 and C के लिए 2 minus 0 is 2. ठीक है. So you have to balance this node, the C node. ठीक है. And you have clearly see that there are two left insertions. So you have to perform a right rotation over this node. ठीक है. क्योंकि इस नोड का ही बैलेंस फैक्टर गड़बड़ है. एंड रिमेंबर मैंने बोला था द मीडियन शुड बी द रूट ऑफ दिस ट्री. सो एक राइट रोटेशन के बाद ये आपको कैसा दिखाई देगा. सो जब आप सी को नीचे पुल करोगे बी ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा. सो हेयर इज बी, हेयर इज ए and C should be here. So balance factor again calculate 0, 0 and 0. Got it? So yeah, it is also an ABL tree. ठीक है. So this is case number 2. Now अब ये तो सिंपल हो गए. दोनों राइट राइट पे लगे हुए हैं, दोनों लेफ्ट राइट पे लगे हुए हैं. What if the third case comes to you? Now what is the third case? Let's suppose from these elements I try to make something different. A and B, not B, C and B. ठीक है. तो क्या ये BST है? ऑफ कोर्स ये BST है क्योंकि C जो है वो A से बड़ा है इसलिए A के राइट में है. ओके. अब B A से बड़ा है इसलिए A के तो राइट में है, बट B जो है वो C से छोटा है इसलिए C के लेफ्ट में है. तो यहाँ पे सिंपल नहीं है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है. ठीक है. तो अगेन बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं सबसे पहले. तो B का 0, C का 1 और A का क्या आएगा? -2.
आई होप बैलेंस फैक्टर निकालने में आप लोग इतने कंफर्टेबल हो गए होंगे कि ट्री को देख के आप उसका बैलेंस फैक्टर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, नाउ अब फिर से हमें रोटेशन परफॉर्म तो करने हैं, और रोटेशन कहाँ परफॉर्म करने हैं, ये यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अब लेकिन मैंने तो आपको ऊपर दो चीजें सिखाई थी, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट। तो पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो यू हैव सीन दैट तो टू मेक दिस ट्री राइट राइट हम क्या करेंगे, ए, सी और बी को यहां रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात, गलत बात, क्योंकि फिर ये बाइनरी सर्च ट्री ही नहीं रह जाएगा इस फॉर्म में आने के बाद। ठीक है, अब ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है तो फिर मैं इसे एवीएल बनाऊंगा कैसे। ओके, सो इसको हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोटेशन ही परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि एवीएल ट्रीज में रोटेशन ही अलाउड होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, बीएसटी में या फिर एवीएल ट्रीज में रिपीटेड एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते। ठीक है, सारे यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। करेक्ट, ओके। तो अब ये राइट राइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले नोड पे इस वाले पे ये लेफ्ट में जा रहा है ना, तो हमें इसे राइट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा इस वाले पे। सो ए तो अपनी जगह पे ही रहेगा, एंड इसको जब आप राइट परफॉर्म करोगे यानी कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। सो ए, देन बी, देन सी। इजी, आई होप इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं इसका। तो सी का तो जीरो ही रहेगा, बी का -1 और ए का -2। ठीक है, तो ये अभी बीएसटी है, लेकिन एवीएल अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन हम इसे एवीएल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि राइट और राइट रोटेशन यहाँ पे गिवन है, और हमें पता है जब दो सीक्वेंस राइट राइट रोटेशन होते हैं तो हम इसको पुल डाउन करेंगे और मीडियन वाले नोड को रूट नोड बना देंगे। ठीक है, सो जो हमारा एवीएल ट्री दिखेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, बी ए सी। सो बैलेंस फैक्टर 0 0 एंड 0। नाउ इट इज एन एवीएल ट्री। इजी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आपको इस चीज में, इतना मैं अश्योर्ड हूँ। ठीक है, अब लगे हाथ आखिरी केस भी देख लेते हैं। ओके, सो केस नंबर 4। सो हियर सी, ए एंड बी। ठीक है, और बैलेंस फैक्टर 0 1 एंड 2। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है। तो ये है लेफ्ट इंसर्शन और ये है राइट इंसर्शन। सो इसको हमें सबसे पहले लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेफ्ट रोटेशन लगा दूं इस तरीके का। ठीक है, सो सी, ये बी इधर आ जाएगा और ए नीचे पहुंचेगा। ठीक है, सो बैलेंस फैक्टर इसका सिंपल है, यहाँ 0 1 एंड देन 2 एज इट इज से। तो ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट मिल गया आपको, और ये हमारा केस नंबर 2 में अब ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो जब भी दो लेफ्ट रोटेशन दिखेंगे आपको क्या करना है, मीडियन नोड को ऊपर लेके जाना है और इस टॉप मोस्ट नोड को एक पोजीशन नीचे खिसका देना है, यानी कि एक राइट रोटेशन आप परफॉर्म कर दोगे। गॉट इट। तो ये ट्री जो है वो हमारा किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, बी ए एंड सी। गॉट इट। नाउ ये भी हमारा एवीएल ट्री बन गया है। ठीक है, सो इतनी ही चीजें मुझे आपको इस लेक्चर में बतानी थी। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारा, दैट हमारे पास देखने के लिए रोटेशंस कितने टाइप के होंगे, 4, आर आर, एल एल, आर एल और एल आर।
ठीक है, इसके अलावा आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा और ये सभी चीज़ें मैंने आपको इस लेक्चर में बता दी हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।